ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪਾਠ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਐਵੇਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਥਾਟਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਥਾਟਸ ਘਟਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ 2-4 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ ਲਓ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵਿਰਾਗ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਰਹਿਣਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੋਈ ਥਾਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਕਰੀਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈ ਵੀ ਆਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਐਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਥਾਟਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਥਾਟਸ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਟਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕੁਛ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੈਠਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇੰਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਖਿਆਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਖਿਆਲ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਾਂ ਉਹ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਬਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਬਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ, ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਜੁੜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤਾਂ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਬੈਠਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਆਵੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਖਿਲਾਰਾ ਪਾਤਾ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਮੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਣਾ। ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਵੇਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਾ, ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਓ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਲੀਜ਼ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰਾਗ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਨੋਰਮਲ ਜਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰਾਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਡਾਊਟ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੈਠਣੋਂ ਹਟ ਗਈ ਸੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਊਟ ਸੀਗੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਸ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਬਾ ਜੀ। जैसे इन दो ऑडियो रिकॉर्डिंग के जरिए ये माई ने बताया है ऐसे बताने से और भी बहुत साधकों को लाभ होता है। क्योंकि ज़्यादातर साधक सोच लेते हैं कि ये ही आखिरी कदम है, क्योंकि उसके आगे ना कोई बताता है ना ही कोई पूछता है। अब देखो, ये कह रही हैं कि पहले बचपन में मैं पाठ वगैरह किया करती थी। बिल्कुल सही है, क्योंकि पाठ से ही यात्रा शुरू होगी, पहला कदम है ना। तो पढ़ना उपदेशों को सतपुरखों के पहला कदम है। तो पढ़ पढ़ के ख्याल में आने लगा कि ये ही करते रहना है क्या। ये भी उसी के ख्याल में आता ही है बात जिसके अंदर प्यास होती है। नहीं तो ज़्यादातर तो लोग पाठ को ही उपलब्धि समझ लेते हैं। सुबह शाम पाठ कर लिया, बस हो गया नित्य। इतने से गुरु खुश हो जाएंगे। अगर पाठ छोड़ दें तो कहते हैं कि गुरु से बेमुख हो जाएंगे। देखो, बड़े बड़े प्रचारक भी, मैं कई बार हैरान हो जाता, कहते हैं पाठ नहीं करोगे तो बेमुख हो जाओगे, जे बाहर का पहरावा नहीं पहनोगे तो बेमुख हो जाओगे गुरु। अब गुरु से बेमुख कौन होता है? जो पाठ नहीं करता है वो बेमुख होता है। बेमुख वो होता है जो गुरु का कहया होया नहीं मानता है। बेमुख वो ही होगा ना जो गुरु कह रहे हैं वो नहीं मानता है, वो तो मनमुख है। बेमुख कह लो, मुख दूसरी तरफ है, गुरु की तरफ नहीं, गुरुमुख नहीं। तो मनमुख ही बेमुख है ना, मन की तरफ। जो मन कहता है वो कर रहा है, मन चल रहा है, संसार की मोह माया में लगा हुआ है। तो ये कैसे गुरुमुख हुआ फिर? ये तो बेमुख है ही। अब बाहर से यही मैं कहता हूँ ना अक्सर,
भी बाहर से धार्मिक पहरावा पहन लिया, जो भी धार्मिक लोगों ने बताया। मर्यादा रहत वो पूरी करने लगा। लिख भी दिया, देखो, रहत प्यारी मुझको गुर सिख प्यारा ना। ये किसी ने कहा होगा। गुरु कोई रहत थोड़ी देखता है कि बाहर पहरावा पहन लिया, तो मर्यादा पूरी कर ली। गुरु मन देखता है। जिन मन होर ते मुख होर कांडे कच्चियाँ, कहा है ना। और मन तो संसार की तरफ लगा हुआ, तो पहरावा पहन लिया, पाठ करने लगे, तो गुरमुख नहीं हुए, बेमुख हो गए। मनमुख है ना, मन की तरफ। तो वो कहते हैं कि जे पाठ छोड़ दिया तो बेमुख हो गए, बाहर का पहरावा छोड़ दिया तो बेमुख हो गए। नहीं, गुरु तो ना तो पहरावा देखता है, ना ही ये देखता है कि कितनी पाठ पूजा आप कर रहे हैं। वो मन देखता है। तो जिसका मन पवित्र है उसी का होगा, जिसको प्रेम है गुरु के साथ, उसी का होगा ना। तो प्रेम वालों को ही हो। देखो, जिन्होंने प्रेम किया है, जैसे भाई गनी खां, नबी खां थे मुसलमान, गुरु को प्रेम किया, उनको गुरु ने कैसा प्यार दिया कि ऐसा कह दिया अपने सिखों को कि जे मेरे पुत्रों के समान हैं, भी ज़्यादा नज़दीक हैं जी, थोड़े आप सभी से भी ज़्यादा नज़दीक हैं। तो जिन्होंने बार का पहरावा पहना हुआ था, नित्यनेम करते थे, उन्होंने गुरु को ठहराया नहीं, तो वो बेमुख ना हुए। तो बेमुख जो है वो पाठ ना करने से नहीं होता है। बेमुख वो है जो गुरु का कहा नहीं मानता है। गुरु कहते हैं सिमरन करो, बार बार कहते हैं, देखो कितनी वाणी में सिमरन, नाम, चिंतन। तो जो पढ़ता है, पढ़ पढ़ के जिसके अंदर प्यास होती है, वो कहता है नहीं, अब सिमरन करने को बोला है गुरु ने, अगला कदम सिमरन है। तो इसके मन में भी ख्याल था, तभी किसी ने, कहती है, मेरे को सिमरन करने वाले ग्रुप में ऐड कर दी। उधर विदेशों में बने हुए होंगे, उधर भी करवाते हैं। आजकल आसान है, देखो टेलीफोन पर भी सिमरन होता है, पाठ भी होता है टेलीफोन पर, लोग सहज पाठ करते हैं। देखो ऐसे सिमरन करवाते थे, तो उससे भी लाभ हुआ। दूसरा कदम था ना सिमरन करना, पहला पाठ करना, दूसरा सिमरन करना। तो इस सिमरन में इसने भावना से किया, प्यास होगी ना, नहीं तो ज़्यादा ऊपरा ऊपरा करते हैं लोग। थॉट को कोई नहीं रोकता है। ये कहती मैंने थॉट को रोका, विचारों को रोका तो धीरे धीरे रुकने लगे। ज़्यादा ध्यान दिया, अंदर प्यास है ना गहरी, तो ध्यान ज़्यादा दिया, तो वो थॉट रुकने लगे, विचार कम होने लगे, तो इसको रस भी आने लगा। जितने विचार कम होते हैं ना, उतना
अच्छा लगता है। आदमी अकेला भी बैठा रहे फिर ऊबता नहीं है, उसको बैठने में ही अच्छा लगता है, कुछ सोचना नहीं विचारना नहीं मज़े से बैठे। पर फिर भी जो मन है वो अभी मरा नहीं है, रुक जाता है। जैसे आप सो जाते हैं सुबह उठ जाते हैं, मरे तो नहीं है, ऐसे ही मन रुक जाता है, मरा नहीं। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि बहुत सारे डब्बे रखे हों तो उनके ऊपर एक बंदर कूदता है तो धीरे धीरे डब्बे हटाते जाओ, सारे हटा दो एक रह जाएगा तो एक पर भी कूदेगा वो, एक तो है ना। ऐसे ही मन एक ख्याल में रुक जाता है, सिमरन एक ख्याल है, ध्यान एक ख्याल है, धारणा में भी रुक जाता है। जो भक्ति करते हैं उनकी एक धारणा है, वो धारणा में रुकाते हैं मन। धारणा ही है, राधा भी एक धारणा है, कृष्ण भी एक धारणा है। जो पीछे निकल चुके हैं उनकी आप एक धारणा बनाते हो, एक ख्याल बनाते हो, एक तस्वीर बनाते हो अंदर, उसी से जुड़ते हो ना। कहते बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर है हमारी लाडली राधा, राधा का नाम जपते। दूसरी बात ये भी समझने योग्य है यहाँ कि जो ज़्यादातर लोग किसी देवी की साधना करते हैं या राधा की करते हैं या कोई और किसी स्त्री की साधना करते हैं, वो शक्ति की साधना करते हैं। क्योंकि परमात्मा की शक्ति व्यापक है, प्रगट रूप में भी है, दिखाई दे रही, तो उसकी साधना करनी आसान है। इसलिए देवियों के साथ ज़्यादा लोग जुड़ गए, तो शक्ति प्रगट भी होती रहती। तो लेकिन है शक्ति परमात्मा की ही, परमात्मा द्वारा ही चल रही। अब ये तो कहते हैं ना कि राधा के अधीन है कृष्ण, लगता ऐसे ही है ना, जैसे लिखा हुआ कि भक्तों के अधीन है परमात्मा, है ना। पर ऐसा होता नहीं है, परमात्मा किसी के अधीन नहीं होता है। लेकिन जो लीन हो जाता है ना, उसके बारे में ऐसा कहा जा सकता है परमात्मा उसके अधीन है, क्योंकि लीन जो हो गया कि कार हो गया। अब जो जो सोच रहा है वो हो रहा है, तो लग तो ऐसा ही रहा है कि परमात्मा अधीन हो गया। ऐसे ही वो अधीन होता नहीं है, उसके अधीन माया है, माई है, ये शक्ति है। तो शक्ति के ही सारे रूप हैं, दुर्गा कहो, पार्वती कहो, जो भी कहो। तो जो साधना कर रहे हैं वो शक्ति की कर रहे हैं। तो शक्ति की साधना करने से शक्ति आती है, क्योंकि जैसा आप चिंतन करते हो वैसा होता है। तो शक्ति की भी एक धारणा है, इसलिए देवियों की धारणा, तस्वीरें बनाते, मूर्तियों, धारणों से बन रही हैं, ख्याल है भी ऐसी है। तो धारणा से जुड़ते हैं, धारणा से भी मुक्त होना है, वो बहुत कठिन है। ज्ञान तो टिक गया धारणा में अब, लेकिन अभी भी द्वैत तो बची है ना। धारणा करने वाला, उसकी तरफ ध्यान करने वाला, तो जिस पर ध्यान कर रहा है वो ध्याता ध्यान दे, अभी तीन में मन बटा हुआ है। तो जहाँ तो देह को गिराना पड़ेगा, जहाँ ध्याता को गिराना पड़ेगा। तो ये बहुत कठिन है। इस मार्ग पर, इस पौड़े पर कह लें आप, इस अवस्था में ज़्यादातर साधक रुके हुए हैं, क्योंकि वो धारणा को पकड़ लेते हैं,
फिर उसमें रस भी आता है, क्योंकि मन टिक जाता है ना धारणा में, तो रस आता है। लेकिन मन मरता नहीं है, लगा रहता है, रस लेता रहता है। तो फिर जैसे ये कह रही है ना कि मेरे को अभी क्रोध आता है, अब क्रोध से कैसे छुटकारा पाऊं? क्रोध इसीलिए आ रहा है कि आपका भी अहंकार कायम है, मन कायम है। तो जब तक मन कायम है ना, तो यह बार बार ही संसार में गिरता रहेगा। जब तक आप साधते रहोगे थोड़ा सदता भी रहेगा, लेकिन फिर गिर जाएगा संसार में। ज़्यादा भी गिर सकता है, ज़्यादा भी भटक सकता है। अक्सर साधकों का ऐसे भटक जाता है। जैसे आप सुनते हैं ना, ऋषि मुनि साधना करते रहे, उनकी एकाग्र हो गया, मन टिक गया, तो बहुत बहुत समय बैठे रहते थे, कहते वो पता नहीं ना लगता जब एकाग्र हो जाता है बैठे का भी। तो देखो कितनी समाधि लग गई, लेकिन मन फिर भटक गया संसार में, क्योंकि मरा नहीं ना। यही मैं कहता हूँ अक्सर बार बार कि जब तक मरता नहीं है मन ना, तब तक भटकना खत्म नहीं होती। तभी का है ना, मन मरे तात मर जाए, बिन मन मुए कैसे हर बार। तात का अर्थ होता है दौड़। संसार की दौड़ बिना मन मरे से खत्म नहीं होती है। तो मन मरे से बगैर परमात्मा भी नहीं मिलता है, क्योंकि दौड़ ही खत्म नहीं होती है संसार की। फिर गिर गिर जाता है संसार मन, जब तक मरता नहीं है। तो मन जीवित है, इसीलिए क्रोध आता है। तो मोह भी जीवित है, मोह के कारण ही क्रोध आता है, लोभ के कारण क्रोध आता है। इसका मतलब भी ये जो विषय हैं 5 मन के, वो अभी मरे नहीं, मन को संभाले हुए है। मन थोड़ी देर टिक जाता है, फिर विषयों में चले जाता है। फिर ख्याल में लो, सिमरन करने से मन टिक जाता है, ध्यान करने से मन टिक जाता है, चिंतन करने से, प्रेम से भी टिक जाता है, लेकिन मरता नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ध्यान ना करें, आप चिंतन ना करें। ध्यान तो करना ही है, पहले तो टिकाना ही है ना मन को। तो जो टिका हुआ है मन, उसी को मारना है ना। तो गुरु को भी जो समर्पित करता है मन, वो ही मन समर्पित करता है जिसका मन टिका होता है। ये ख्याल में लो, खंड खंड मन समर्पित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मन तो पहले खंड खंड है। एक मन कहीं है, एक मन कहीं है, एक मन कहीं, तो वो समर्पित थोड़ी होगा। एक मन होगा तो तभी समर्पित होगा ना। कहते हैं ना, एक मन जे एक चित्त ते आयो, काल फांस के बीच ना आयो। एक मन हुआ पहले, एक चित्त हुआ, ध्यान एक जगह टिक गया, स्थिर हो गया। तो टिका हुआ मन समर्पित होता है जो प्रेम की यात्रा करते हैं, मार्ग पर चलते हैं। तो टिका हुआ मन तब छूटता है जब ये संसार की सारी वासनाएं छूट जाती हैं, जिनको काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कहा।
तो ये वासनाएं तब छूटती हैं जब संसार बिल्कुल आसार, झूठ, व्यर्थ, कूड़ लगने लगे। संसार झूठ, कूड़, व्यर्थ तब लगता है जब आप एकाग्र मन द्वारा देखते हैं, टिके हुए मन द्वारा देखते हैं कि लोग भागे जा रहे हैं, उनको मिल क्या रहा है, मेरे को तो बैठे बैठे शांति मिल रही है। तो ये शांति के लिए, सुख के लिए बाहर को भाग रहे हैं। सुख अंदर है अपने, आनंद अंदर है अपने। कहते हैं ना, सारे सुखों का खजाना तुम्हारे अंदर अंदर है, रस अंदर है। तो ये रस के लिए बाहर जा रहे हैं, ये पागल है। तो सब पागल लगेंगे लोग कि बेधौड़े कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ है सुख बाहर संसार में। तुम्हारे ही अंदर है पागलो, अंदर खोजो। तो तुमको सारे लोग ऐसे लगेंगे भी क्या खोज रहे हैं बाहर। ये तो वैसे ही है जैसे रेत में कोई तेल निचोड़ रहा, उसमें कहाँ है तेल। हो सकता निकल भी आए, लेकिन संसार में तो कुछ भी नहीं निकलता। मौत निकलती है, आखिरकार मरोगे, बस मौत ही निकल रही है। हर वक्त ही मौत निकल रही है, आखिर में तो मरोगे। अभी मौत की तरफ जा रहे हैं आप, कंटिन्यू, लगातार मौत की तरफ, मृत मंडल की तरफ। तो मृत मंडल को आप देखोगे गौर से, ये तो मर रहा है। जो मर ही रहा है उसके बारे में क्या सोचना है। जो मिट ही जाएगा, मिट ही रहा है। शरीर भी मिट जाएगा, तुम भी मिट जाओगे। तो जो ऐसे देखता है, जैसे फरीद जी ने देखा होगा ना, फरीदा मैं जानिया दुख मुझको, दुख सबाया जग, ऊंचे चढ़ के देखिया घर घर आग। सब आग में जल रहे हैं, तृष्णा की, वासना की, चाहत की, अहंकार की आग। मैं इतना हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं सारी दुनिया को वो कर दूंगा। कितना अहंकार है, सभी जल रहे हैं। ऊंचे चढ़ के देखिए, ऊपर वाली सुरत से देखा, नीचे वाली सुरत से नहीं, संसारिक सुरत से नहीं देखा उन्होंने। संसारी सुरत से देखते तो जहाँ ही भटकते रहते। ऊपर से देखा, थोड़ा ऊपर चढ़ के, जैसे ऊपर से आपको साफ साफ ज़्यादा दिखाई देता है दूर तक, ऐसे। तो ऐसे कोई देखता है जब एकाग्रता द्वारा, जिसको अंदर से रस आ रहा है, तो उसको दिखाई पड़ता ही। तो धीरे धीरे वो इस समझ द्वारा, जो इसको दृष्टि मिली है, उस दृष्टि के द्वारा धीरे धीरे उसके ज्ञान के चक्षु खुलते हैं, जिसको विवेक बुद्धि कहा है। क्या ठीक, क्या गलत। संसार को सोचना ही गलत है, विचारना ही गलत है। झूठ को, मिट रहे को क्या सोचना। तो धीरे धीरे उसके वो ज्ञान के चक्षु खुलते हैं, आंखें खुलती हैं। वो धीरे धीरे फिर हटता है। तो जितना संसार से हटता है उतने ही ये विषय मरते हैं, ये ख्याल में लो। इसलिए हटने को बार बार कहा जाता है, ध्यान हटाओ। ऐसा नहीं भी संसार छोड़ के भागो सभी। हटने का अर्थ है ध्यान हटाओ, सोचो मत। तो जितना आप हटते जाओगे ये विषय मरते जाएंगे, क्योंकि सोचने से ये विषय पैदा होते हैं। जितना आप सोचते हो संसार की तरफ, फिर ऐसा नहीं है जब बैठते हो तभी ध्यान करना है। वो ध्यान को छोड़ देना है अब बैठने वाले को, अब कंटिन्यू करना है। अगला कदम है परमानेंट
8 पहर सिमरो गोविंद। लगातार ये ही ध्यान रखना है कि संसार व्यर्थ है। ये अपने कौन हैं जिनको आप अपने बच्चे कहते हैं? कहाँ से लेके आए हो इनको? तुम्हारे थोड़ी, तुम्हारा तो ये शरीर में नहीं है। फिर अपने बच्चे समझ के फिर जिम्मेवारी समझ लेते। जिम्मेवारी क्या है तुम्हारी? किसने दी तुमको जिम्मेवारी? परमात्मा पाल रहा है, परमात्मा ने पैदा की है, परमात्मा रिज़्क दे रहा है। तुम वैसे ही जिम्मेवारियाँ सांभ रहे हो। राजनीतिक सारे देश की जिम्मेवारी ले रहा है, देखो कितना मूड आदमी है, तो उससे कम थोड़ी हो आप। जिम्मेवारी कौन? सब परमात्मा का है, परमात्मा कर रहा है सब कुछ, तुम तो कुछ भी नहीं कर रहे हो। किसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है, तुम हो ही नहीं, जिम्मेवारी खाक होगी। तो मैं मेरे को छोड़ो, कोई अपना नहीं है। हमरा को नाही हम किसहु के नाही, जिन्हें रचन रचाया तिसी माय। मोह को छोड़ो, मोह छूटेगा लोभ भी छूटेगा, क्यों? मोह के कारण लोभ चलता है, तो उन्हीं के कारण ये क्रोध भी आता है। ये दोनों नहीं होंगे फिर अहंकार भी कम होगा कि मेरा कुछ है ही नहीं, तो अहंकार भी कम होगा। ऐसे धीरे धीरे मन मरेगा, समय लगेगा। हाँ, घर पर संसार में रहने से समय ज़्यादा लगता है, क्योंकि वहाँ आपकी सूरत को सभी खींचने वाले। थोड़ा सा हट के आप जियोगे तो थोड़ा जल्दी होगा, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा आसान हो जाएगा, बस इतना ही है। खींचने वाला कोई नहीं बाहर को। तो जहाँ सभी अंदर को आने वाले हैं सत्संगी, जहाँ ऐसे ही हैं सभी सत्संगी जो ये ही काम कर रहे हैं, ध्यान हटाने का, सुरत हटाने का, मुक्ति की तरफ आ रहे हैं, उनमें अगर कोई रहे तो और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि जैसे में रहेगा वैसे ही होगा। तो वो भी हटा रहे हैं धीरे धीरे, तो धीरे धीरे दूसरे को भी लगने लगेगी कि मुझे भी हटाना चाहिए। तो जितना ध्यान हटता रहेगा बाहर से, दृष्टमान से, उतने ही आप मुक्त होते रहोगे। मुक्त तो दृष्टमान से ही होना है ना, संसार से ही होना है ना। तभी कहा है संसार समुंदे तार गोबिंदे तार ले बाब बिटल, इसी से मुक्त होना है ना। जो मुक्त हो जाता है उसको क्या कहते हैं? संसार से मुक्त हो गए। तो जिससे मुक्त होना है उससे छूटना है पूरा का पूरा है, तभी मुक्त होना है ना। ये एक शब्द भी ग्रुप में डाला हुआ है, आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। जो मुक्त है उसके पास आप मुक्त होते रहोगे, ऐसा नहीं वो करता है। तो जिसको मुक्ति से डर लगेगा वो भाग जाएगा। देखो मुक्ति का भी डर है, क्योंकि संसार छूट जाएगा ना, जाना माना पहचाना सब जाता जाएगा, तो डर तो लगता ही है ना। तो जो डरेगा वो भागेगा। तो जो डर के बावजूद भी जूझेगा, तभी कहा है ना, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हित, पुरजा पुरजा कट मरे कबहू न छाड़ेगे। तो दीन के हित का अर्थ है अपने धर्म के लिए। धर्म क्या है? तुम्हारा परमात्मा को मिलना, उसके लिए वो वैसे ही जूझता है जैसे बाहर कोई जूझ रहा है देश के लिए, मजहब के लिए। तो बाहर के युद्ध में शायद शहीद हो ना हो,
कि मन अटका रह जाए। लेकिन ये अंदर के युद्ध में शहीदी होनी आवश्यक है, जहाँ शहीद होना ही होना है, पक्का ही है कि जिसने शहीद होना है वो ही आओ। पहला मरण कबूल, जीवन की छड़े आस, जीवने की आस छोड़ के संसार में नहीं जीना है। तो जो नहीं जीना है संसार में, उसको ही परम जीवन मिलेगा ना। संसार का जीवन छूटेगा तभी परम जीवन, प्रभु का जीवन, प्रभुमयी जीवन मिलेगा। तो वो नया जीवन देने के लिए पुराने को मारते हैं। जैसे गुरु गोविंद सिंह ने पांचों को समाप्त किया, उनका पुराना जीवन समाप्त किया, नया जीवन फिर उनको मिला गुरु का। देखो वो अपने आप को जब कोई पूछता है उनको कि तुम्हारा गुरु कौन है, गुरु गोविंद सिंह साहिब से, तो वो कहते नहीं हमारा गुरु नानक देव जी हैं गुरु। कह ही सकते थे ना, लेकिन वैसा नहीं उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है आदि अंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझियो हो हमारा। इसका अर्थ है कि जो पहले से अब तक अवतरित हो रहे हैं गुरुओं में, तो आगे भी होते रहेंगे, वो ही है हमारा गुरु। तो वो सदा ही है, क्योंकि अवतरित तो अभी भी हो रहा है। तो अब जो लोग गुरपुरब मना रहे हैं, जैसे सिख गुरु नानक का गुरपुरब मना रहे हैं, तो पूर्व का अर्थ होता है जो पीछे हो चुके, उनका दिन मना रहे। तो गुरु ऐसा थोड़ी होता है कि हो चुका, जो हो चुका उससे संबंध कैसे जुड़ेगा। नहीं, वो जाते ही नहीं है कहीं, वो अब भी मौजूद है। हाँ, बाहर का रूप बदल जाता है, भाषा बदल जाती है, समझाने के तरीके बदल जाते हैं, क्योंकि बाहर संसार बदल रहा है। लेकिन वो तो अब भी अवतरित हो रहा है, वो ही। तो वो आगे भी होता रहेगा। तो यही मैं आपसे कहता हूँ, आदि अंत के अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। अभी है मौजूद, उससे संबंध जोड़ना है। ये आप भी ऐसा ही कहो अगर कोई पूछे तो, आदि अंत के अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। वो जिसमें भी अवतरित हुआ है, प्रगट हुआ है तो सभी में परमात्मा ही। वो तो दिख पाते हैं, लेकिन ढका हुआ है आप सभी में माया के पर्दे से। तभी कहा है ना, आवरण को हटाना है, दीवार को गिराना है। माया की दीवार, कूड़ की दीवार, झूठी दीवार, संसार की विचार की, उसको गिराना है। वो पर्दा है आपके ऊपर। तो जिसका वो पर्दा हट गया उसको कहते हैं प्रगट हो गया, प्रगटिया, उसकी धुंध हट गई। तो जिसमें वो प्रगट हो रहा है, तो जिसमें भी वो प्रगट होता है ना, वो ही देख पाता है कि ये धुंध कैसे हटेगी, ये पर्दा कैसे हटेगा संसारी लोगों के ऊपर पड़ा हुआ। तो वो फिर पर्दे को हटाना चाहता है, क्योंकि सभी वैसा ही देख पाएं जैसा वो देख रहा है, परमात्मा। तो परमात्मा पर्दा हटे से दिखेगा, दीवार गिरे से दिखेगा, मन मिटे से दिखेगा, ऐसा बोलो। तो मन मिटेगा धीरे धीरे, समर्पित करने से।